statute and the role of the interpretation statute. Okay, so चलिए शुरू करते हैं. So basically the interpretation meaning, the term has been derived from the Latin word interpretatory, which means explain, expound, understanding, or translate. Right? The basically it's involved an act of discovering the role meaning of language which has been used in the statute. So various source use only limit to explore the written text and clarify what exactly indicate by the word used in the written text of the schedule. So interpretation of a statute is the correct understanding of the law. So the purpose of behind the interpretation to clarify the meaning of the word used in the statute which might not be clear. Okay, so interpretation का basic मतलब है आपका कि जो आपका एक्ट है या जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करना और उसका ट्रू मीनिंग एक्सप्लेन करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसका ट्रू मतलब जो उसका सही है वो डिस्कवर करना, यही इंटरप्रिटेशन का मतलब है. एंड कंस्ट्रक्टिव मीनिंग, एक वर्ड दूसरा कंस्ट्रक्टिव है. सो कंस्ट्रक्टिव मीनिंग, इट्स सिंपल वर्ड कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन of the subject which are beyond the direct expression of the text. The court draw finding after analyzing the meaning of the word used in the text or statute. This process known as a legal explosion. There are certain set of facts pending before the court and construction is the application of the conclusion of these facts. The object of the assist the judicial body in determine the real intention of the legislature. Its aim is to ascertain the legal effect of the legal text. So construction meaning होता है आपका जो legal like कोई law है उस particular subject matter पे जो interpretation होनी है, अगर वहाँ पे कोई ambiguity है so उसका purpose find out करके उसका real interpretation court को बताना कि what is the real interpretation of this thing. ओके, सो उसका ऑब्जेक्टिव होता है आपका रियल इंटरप्रिटेशन पता करना, आपका इंटेंशन क्या थी, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट लॉ लाइक लेजिस्लेचर व्हाइल कंस्ट्रक्ट द लॉ. सो दिस इज द वे वी आर लाइक फाइंड द कंस्ट्रक्शन मीनिंग. ओके, सो डिफरेंट बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. सो इंटरप्रिटेशन in law, interpretation refer to the exposing the true sense of the positivism of the statute and to understand the exact meaning of the word used in the text. Construction on the other hand refer the drawing conclusion from the written text which are beyond the outright expression of the legal text. Interpretation refer the linguistic meaning of the legal text and the purpose of the construction to determine the legal effect of the word and written text of the statute. And in the case where the simple meaning of the text is to be adopted, then the concept of interpretation is being referred. And in the case where the literal meaning of the legal text result in ambiguity, then the concept of construction is adopted. अगर वहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी है तो उस एम्बिग्यूटी को ख़त्म करने के लिए हम फिर कंस्ट्रक्शन का जो है मेथड वो अप्लाई करते हैं, अडोप्ट करते हैं. अदरवाइज वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन. So classification of statute, there is a many like the statute is classified in several category. So here is a category, I just explain you all. So मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस कैटेगरी को हम लोगों ने क्या और क्यों डिफाइन किया. लाइक अब बात करते हैं codify statutes. So the purpose of this kind of statute is giving the authoritative statement of the rule of the law on a particular subject which is customary law. For example, the Hindu Marriage Act 1955 and Hindu Succession Act 1956. So जो customary law थे उनको codify करके उनको एक एक्ट में कन्वर्ट करना, कन्फाइन करना, अगर ये इस तरह के हैं तो उनको बोलेंगे कोडिफाइड स्टैचू. कंसोलिडेटिंग स्टैचू, अब कंसोलिडेट क्या होते हैं कि देयर इज अ सब्जेक्ट मैटर, एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन लोगों को कंबाइन करके एक जगह रख लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेटिंग स्टैचू. लाइक आप लोग प्रेम्बल में भी पढ़ते रहे होंगे कि कंसोलिडेटिंग वर्ड प्रेम्बल में आपको मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द, अगर आप डायरेक्ट देखेंगे. दिस काइंड ऑफ स्टैचू कवर and combine all law on a particular subject at one place which was scattered and laying at different place. There's the entire law is
constituted in one place. For example, IPC, इंडियन पिनल कोड, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो एक टाइप के जो सब्जेक्ट मैटर है, लाइक क्रिमिनल मैटर का, हमारे सारे जो कोड हैं, हम लोगों ने जो सारे लॉज हैं वो एक जगह पे रख लिया और एक कोड बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. आईपीसी में भी सेम काइंड ऑफ लाइक जो हमारे सारे लॉज हैं जो उससे रिलेटेड है वो हम लोगों ने एक जगह पे रख लिए, उनको कंसोलिडेट कर लिया एक जगह से. सो उसको कंबाइन करके एक लॉ बना दिया जो उससे रिलेटेड लॉ हैं. सो उसको हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स. डिक्लेरेटिंग statute. This kind of statute does an act of removing doubt, clarify and improving the law based on the interpretation given by the court, which might not be the suitable from the point of view of the parliament. For example, the definition of house property has been amended under the Income Tax Act Amendment Act 1985 through the judgment of the Supreme Court. सो इस डिक्लेरेटिव में हम लोग अगर कोई एम्बिग्यूटी है और उसको रिमूव कर देंगे तो, और उसको क्लैरिफाई करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो इस तरह की जो डिक्लेरेटरी स्टैचू उनको हम लोग बोलते हैं. Explanatory statute. The term explanatory itself indicate that this type of statute explain the law and rectify any omission left earlier in the enactment of the statute. Further ambiguities in the text are also clarified and check upon the previous statute. That's mean explanatory statute की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि जैसे प्रीवियस हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे उसकी कि जो कोई एम्बिग्यूटी है वो क्लैरिफाई हो जाए. उसके नाम से ही ये इंडिकेट करता है, बताता है कि एक्सप्लेन द लॉ एंड रेक्टिफाई द ओमिशन लेफ्ट अर्लियर एंड एनेक्टमेंट ऑफ द स्टैट्यूट. कि पहले अगर कोई उसमें अगर एम्बिग्यूटी रह गई थी या कोई क्लियरिटी नहीं थी तो उस एम्बिग्यूटी को जो क्लियर करता है और उसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराता है. अमेंडिंग स्टैचू. अमेंडिंग स्टैचू अब हम लोग समझेंगे. द स्टैचू विच ऑपरेट टू मेक चेंजेस इन द प्रोविजन of the enactment to change the original law or making an improvement therein and for carrying out the provision effectively for which the original law was passed and referred to as amending statute. For example, Code of Criminal Procedure 1973 amendment the Code of 1898. सो हमारा जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसको हम लोगों ने अमेंडमेंट करके नया क्रिमिनल कोड बनाया जो कि आपका 1973 का CRPC है. रिपीलिंग स्टैचू. रिपीलिंग स्टैचू का मतलब होता है कि किसी कानून को ख़त्म कर देना. ए रिपीलिंग स्टैचू इज वन विच टर्मिनेट इन अर्लियर स्टैचू एंड मे बी डन इन एक्सप्रेस और एक्सप्लिसिट लैंग्वेज ऑफ द स्टैचू. फॉर एग्जाम्पल, कंपटीशन एक्ट 2002 रिपील एट MRTP एक्ट. जो ये आपका एक एक्ट था, इस एक्ट के बाद में जो आपका कंपटीशन एक्ट था ये रिपील कर दिया गया. क्यूरेटिव और रिपीलिंग स्टैचू. थ्रू दिस स्टैचू सर्टेन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी illegal and validate by curing the illegalities and enable a particular line of action. That means curative and repealing statute. अगर कोई एक्ट ऐसा है जो कि वॉयलेशन करता है, लाइक अगर हम बात करें आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि अगर कोई ऐसा कानून बना है जो कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है तो वो आपका कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा. बट क्यूरेटिव में क्या होगा कि उसका जो पार्ट वॉयलेशन करता है और जो कि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है या उस आई मीन डेरोगेटिव नेचर का है तो उस पार्ट को हम लोग हटा देंगे और वो पूरा का पूरा जो आपका एक्ट होगा वो वैलिड होगा, वो फिर काम कर पाएगा. सो इसमें हम क्या बोलेंगे, उसको क्योर कर देंगे. Remedial statute. Granting a new remedies for enforcing one right can be done through the remedial statute. The purpose of this kind of statute is promote the general welfare for bring the social reform through the system. These statutes have liberal interpretation and thus are not interpreted through strict mean. For example, the Maternity Benefit Act 1961 and the Workmen's Compensation Act 1923 एक्सेट्रा. सो जो रेमेडीज स्टैचू होते हैं वो थोड़े लिबरल होते हैं. उनका जो मोटो होता है कि अगर कोई इश्यूज है तो उसमें थोड़ा लिबरल होकर इंटरप्रिटेशन करके जो प्लेंटिफ है उनको या जो आपका एप्लीकेंट है उसको रिलीफ प्रोवाइड कराना.
enabling statute. The purpose of this statute is to enlarge the particular common law. For example, Land Acquisition Act enable the government to acquire the public property for the purpose of public which is otherwise not permissible. So enabling statute क्या होते हैं, वो इस तरह के statute होते हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट की, जो कि जिसमें आपकी मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनकी सारी ज़मीनें एक्वायर करके गवर्नमेंट ने छोटे छोटे जो किसान थे या जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको बांट दी ताकि इक्वलिटी ला सके, ताकि या फिर आप बात करें कि अगर कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है तो किसी की भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, बट ये पहले नहीं हो सकता था क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, और अगर उस राइट का वॉयलेशन हो जाएगा तो वो इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो फिर हम लोगों का केशवानंद भारती या फिर और केस आए जिसमें कि गवर्नमेंट ने जो उन लॉज को लीगल राइट बना दिया ना कि फंडामेंटल राइट, और वो फिर अब आपकी लैंड एक्वायर कर सकते हैं. तो वो अनेबल स्टैचू वहाँ पे एप्लीकेबल होगा. डिसेबलिंग स्टैचू, इट इज़ द अपोजिट ऑफ द प्रोवाइडिंग अंडर द एनेबलिंग स्टैचू हैज़ द राइट कन्फर्ड बाय द कॉमन लॉ आर बीइंग कट डाउन एंड बीइंग रिस्ट्रिक्टेड. यहाँ पे बात करते हैं कि ये इसका अपोजिट होगा कि जो आपका लॉ है, जो आपके राइट है लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो उनको भी आई मीन डिसेबल कर दिया जाता है. Penal status, the offense of various type of offense are providing through these statutes and these provisions are to be imposed strictly. For example, Indian Penal Code. Penal statute क्या होते हैं, लाइक जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसमें वेरियस टाइप ऑफ ऑफेंस आर हैपनिंग इन द सोसाइटी. सो वहाँ पे हम लोगों ने वेरियस टाइप के जो ऑफेंस हैं उनको एक जगह से लाइक कंबाइन करके एक एक्ट बना दिया और एक पीनल कोड बना दिया, और उस पीनल कोड के अंदर वो सारे एक्ट रख दिए, लाइक इंडियन पीनल कोड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. So rule of interpretation, there is a three type of interpretation rule: literal और grammatical rule, mischief rule and golden rule. So मैं लोग बात करेंगे कि क्या literal और grammatical rule होता है. It is the first rule of the interpretation. According to this rule, the word used in the text are to be given or interpreted in their nature or ordinary meaning. After the interpretation, if the meaning is completely clear and unambiguous, then the effect shall be given to the provision of a statute regardless of what may be the consequences. Like case laws में मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का और मनमोहन दास वर्सेस बिहार वो बीसन दास 1967 का है. जो मनमोहन दास वर्सेस बीसन ने इसमें एक टेनेंट का एक एक्ट है, उसके एक्ट में कुछ था कि और लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा और को इंटरप्रेट ऐसे किया गया कि अल्टरनेट है यहाँ पे, इट्स अल्टरनेट ओपिनियन ऑप्शन अवेलेबल ओवर देयर. सो उन्होंने कहा कि इसका जो है ये आपका इसका मतलब यही होता है. सो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंटरप्रिटेशन. लाइक केस लॉज जो हमने दिए हैं इसमें, या मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दो केस लॉज है. मिस्चीफ रूल, सो मिस्चीफ रूल वाज ओरिजिनेटेड इन Hayden case in 1584. It is the rule of the purposive contraction because the purpose of this statute is most important while applying the rule. It is known as Hayden rule because it was given by Lord Poke in Hayden's case in 1584, and it is called as mischief rule because of focus is on curing द मिस्चीफ. इसको मिस्चीफ रूल बोलते हैं बिकॉज इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिस्चीफ को हम क्योर करने की कोशिश करते हैं. इट इज़ द हेडन केस एंड इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज फोर थिंग विच हैव बीन फॉलो फॉर ट्रू एंड श्योर इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द स्टैचू इन जनरल विच आर फॉलोज. तो यहाँ पे चार चीज़ें दी गई हैं जो कि किसी भी लॉ का लाइक राइट इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट आर द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग एन एक्ट, कि इससे पहले जब ये एक्ट आया इस जिसको हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं इससे पहले कॉमन लॉ क्या था. व्हाट वाज द मिसचीफ फॉर विच द प्रेजेंट स्टैचू वाज एनेक्टेड. और जो अभी जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की स्टैचू में उसमें जो मिसचीफ है वो क्या है. व्हाट द रेमेडी डिड द पार्लियामेंट सॉट or hand resolve and appointed to cure the disease of the commonwealth. like जो पार्लियामेंट ने क्या डिसॉल्व किया है, क्या उन्होंने किया है इसको रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए इस प्रॉब्लम को, एंड द ट्रू रीज़न ऑफ द रेमेडी, और जो रेमेडी है जो उपाय है उसका ट्रू रीज़न क्या है. एंड द पर्पस ऑफ दिस रूल इज टू सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी.
ओके, सो जो इसका पर्पस है वो सप्रेस करना है मिस्चीफ को और एडवांस रेमेडी प्रोवाइड करना है मिस्चीफ रूल का. Okay, now come to the next golden rule. It is known as the golden rule because it solves all the problem of the interpretation. इसको हम लोग गोल्डन रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने आपकी सारी ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया इंटरप्रिटेशन की. द रूल से दैट द स्टार्ट विद द वी शैल गो विद द लिटरल रूल. However, the interpretation given through the literal rule lead to the some any kind of ambiguity, injustice, inconvenience, hardship, inequality. Then all such event literally meaning shall be discarded and interpreted shall be done in such a manner that the purpose of legislation is fulfilled. So हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें कि जो लिटरल रूल है, ये जो गोल्डन रूल है, इस रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इस वर्ड का जो रूल जो एक्ट बना है इसका मतलब क्या है. सपोज हम लोग जो मतलब उसका निकल रहा है, जो उसका मीनिंग निकल रहा है, उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है, वो इनजस्टिस है, इनकन्वीनियंट है, हार्डशिप है, इनइक्वलिटी वुड बी देयर. देन इन दैट सिनेरियो हम लोग उसका जो मतलब वहाँ पे निकल रहा है, जो कि इनजस्ट एम्बिग्यूटी है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे. एंड देन हम उसको इस मैनर में करेंगे कि उसका जो पर्पस है लेजिस्लेशन का, उस एक्ट को बनाने का, वो फुलफिल हो. द लिटरल रूल फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग द नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इन द स्टैचू. और हम उसका जो नेचुरल मीनिंग है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. बट इफ इंटरप्रेटिंग नेचुरल मीनिंग लीड टू द एनी सॉर्ट ऑफ like repunge absurdity and hardship, then court must modify the meaning of extent of injustice, absurdity, cause and no further to prevent the consequences. अगर फिर भी इसमें अगर कोई एम्बिग्यूटी आ रही है तो कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकता है और उसकी कंसिक्वेंसेस को कोई नहीं रोकेगा. फिर जो भी उसके कंसिक्वेंसेस होंगे वो एम्बिग्यूटी को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे. ओके, एंड देन harmonious construction. अगर according to the rule of interpretation, when two or more provision of the same statutes are represent to each other, अगर वो एक दूसरे के विरोधी हैं, दो रूल एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, then in such a situation the court if possible will try to construct the provision in such a manner as to give effect to both provision by maintaining harmony between two, कि उन दोनों के बीच में एक हार्मनी, एक संबंध बना रहे. The question that two provision of the same statute are overlapping or mutually exclusive may be difficult to determine. अगर उनमें फिर भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन है, ओवर रूल कर रहे हैं म्यूचुअली, तो फिर उनका जो लाइक एक्सक्लूसिव मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. सो ये था हमारा statutes and the rule of the interpretation. So thank you for the watching the video.